bajo nubes tormentosas que marchitaron jardines, la confianza engañaron. Calendarios borrascosos, sin santorales al dorso, que escribieron pentagramas de gardenias y cerezos, y se escucharon arpegios llenos de amor y de rezo. Enderezó el horizonte de bitácoras cerradas, de siempre vivas y rosas, un latido acelerado. Mucho. Es verdad. Ay, qué rico está dulce esta, chica. Sí. Óyeme. ¿Y Belkis? No, niña, no. Fue que salí muy temprano sin desayunar. Es que para trabajar con el público hay que estar bien alimentado. Mi hija, niña, si el otro día me dio un bajón. Ay, pero tú padeces de azúcar. No, ni... Extrañé mucho. Los que tenían todos aquellos problemas. Ustedes tenían... Quería hacerte una pregunta que tiene que ver con Marcos. Y es... y también necesito que tú me entiendas. La historia de la muchachita, de la guajirita, está muy rara, mi amor. Nadie está solo en el mundo. Te estoy diciendo que yo no estoy loca ni ciega. Y ese... De estar desvariando y ese tipo de cositas, ¿verdad? Graciosito, papi. ¿Tú crees? Sí. Claro. Es que ya a estas horas tú empiezas a dar señales. La vista. Ah, se te perdió de la vista. ¿Te pareció o la viste? Bueno, yo andaba con mi papá. Me bajé del carro rápido, pero se me perdió con... ¿A quién? ¿A la guajirita? ¿A Liga? Sí. Pero espérate. Me pasó algo buenísimo hoy. Adivina quién me pareció haber visto por la avenida. Tienes razón. Que se te va a caer un pedazo ahora porque me ayudes a fregar. Ay, no, chica, no, dale. Estamos empezando. Voy a fregar yo, es la locura. Date, no te puedo dar por eso, mami. Mira, si tú estás aquí no es para que mi abuelita te reforme. Sí, pero en eso ya... Ay, papi, ayúdame. No, ahí está, no. No entiendo nada por ese hombre y muchísimo menos lástima. Tu amor y tu lealtad es con tu... No, pero ¿de quién es la culpa? ¿Eh? Lía, tú no puedes... ¿Por qué te preocupaba que apareciera en el expediente? Y muchísimo. No. Porque si era una bobería... Porque es una mancha para toda la vida y eso no me lo puedo permitir. ¿Usted me entiende? Una bobería. Yo lo que no quería es que surgieran malos entendidos y eso aparecía en mi expediente. Te pasó en la otra farmacia. Ay, Simón, eso es un... Escuché sin querer la conversación entre Quique y tú sobre lo que... Yo lo veo muy diferente. Simón, ¿a usted le pasa algo conmigo? Porque desde hace unos días... No, Albert, gracias. No. No te preocupes, si al fin y al cabo nosotros siempre lo hicimos. Pero bueno, eso era antes de que yo estuviera aquí. Ustedes nada más se tienen el uno al otro, desgraciadamente. Ulises, ustedes no pueden seguir así, mi hermano. Me quiere ir de cuidador, con celibato incluido. Ella seguro lo hizo porque Enrique la presionó, o porque no quiere dejar la casa sola. Bueno, ¿y qué le dijiste? Que no. Y qué bueno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Me ofreció volver al apartamento. ¿Qué pasó?
La misma historia, reverte. Estoy cansadísimo. सो है गाइस, आज हम बात करें एक छोटा सा फैसला। आज की कहानी में सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा सही फैसला पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। एक शहर में समीर नाम का एक जवान रहता था। वो एक ग्रोसरी स्टोर के कैशियर था। ग्रोसरी स्टोर में कैशियर था। उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक शाम दुकान बंद होने से कुछ देर पहले एक आदमी बहुत जल्दी में शॉपिंग करके चला गया। समीर ने कैश काउंटर साफ किया तो उसने एक एनवलप मिला। एनवलप के अंदर 50,000 रुपए थे। समीर कुछ देर तक एम्प्लॉय को देखता रहा। उसकी माँ के दवा खत्म होने वाली थी और उसके पास घर के खर्चे के लिए भी बहुत कम पैसे थे। उसके दिल में ख्याल आया, मैं ये पैसे रख लूं तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन फिर उसने एम्प्लॉय के अंदर एक छोटी सी रिसिप्ट देखी जिस पर कस्टमर का नाम और फोन नंबर लिखा था। समीर ने फौरन नंबर मिलाया। कुछ देर बाद वो आदमी वापस दुकान पर आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, ये पैसे मेरे बिजनेस की सैलरी थी। अगर ये ना मिलते तो मेरे एम्प्लॉयज को वक्त पर पेमेंट नहीं हो पाती। समीर ने एनवलप उसके हवाले कर दिया। आदमी ने खुशी से कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल दूर कर दी। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। समीर ने कहा, सर, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आदमी चला गया। समीर को लगा बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ग्रोसरी स्टोर के मालिक ने समीर को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा, एक नई सुपरमार्केट चेन में तुम्हारे लिए जॉब ऑफर आई है। समीर हैरान हुआ। पता चला कि वही आदमी उस सुपरमार्केट चेन का ओनर था। उसने कहा, मुझे एक ऐसा मैनेजर की जरूरत थी जिसके पास सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि कैरेक्टर भी हो। समीर को प्रमोशन के साथ बहुत बेहतर सैलरी मिल गई। सालों बाद समीर खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने अपने ऑफिस में एक छोटा सा फ्रेम लगाया हुआ था। जब गलत रास्ता आसान हो तब सही रास्ता चुनना ही असल कामयाबी है। जब कोई उसे उसकी कामयाबी का राज पूछता, वो कहता, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो था जब मैंने किसी और के पैसे को अपनी जरूरत से ज्यादा अहमियत दिया। असल अहमियत तब नहीं होता जब हमारे पास सब कुछ हो। असल अहमियत तब होता है जब गलत चीज हमारे मुश्किल आसान कर सकती हो। आज की कहानी में ये सिखाती है कि ईमानदारी का फैसला कभी फौरन पैदा नहीं होता, लेकिन उसकी बरकत बहुत दूर तक जाती है। सो है गाइस, आज हम बात करें एक छोटा सा फैसला। आज की कहानी में सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा सही फैसला पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। एक शहर में समीर नाम का एक जवान रहता था। वो एक ग्रोसरी स्टोर के कैशियर था। ग्रोसरी स्टोर में कैशियर था। उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक शाम दुकान बंद होने से कुछ देर पहले एक आदमी बहुत जल्दी में शॉपिंग करके चला गया। समीर ने कैश काउंटर साफ किया तो उसने एक एनवलप मिला। एनवलप के अंदर 50,000 रुपए थे। समीर कुछ देर तक एम्प्लॉय को देखता रहा। उसकी माँ के दवा खत्म होने वाली थी और उसके पास घर के खर्चे के लिए भी बहुत कम पैसे थे। उसके दिल में ख्याल आया, मैं ये पैसे रख लूं तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन फिर उसने एम्प्लॉय के अंदर एक छोटी सी रिसिप्ट देखी जिस पर कस्टमर का नाम और फोन नंबर लिखा था। समीर ने फौरन नंबर मिलाया। कुछ देर बाद वो आदमी वापस दुकान पर आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, ये पैसे मेरे बिजनेस की सैलरी थी। अगर ये ना मिलते तो मेरे एम्प्लॉयज को वक्त पर पेमेंट नहीं हो पाती। समीर ने एनवलप उसके हवाले कर दिया। आदमी ने खुशी से कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल दूर कर दी। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। समीर ने कहा, सर, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आदमी चला गया। समीर को लगा
बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ग्रोसरी स्टोर के मालिक ने समीर को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा, एक नई सुपरमार्केट चेन में तुम्हारे लिए जॉब ऑफर आई है। समीर हैरान हुआ। पता चला कि वही आदमी उस सुपरमार्केट चेन का ओनर था। उसने कहा, मुझे एक ऐसा मैनेजर की जरूरत थी जिसके पास सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि कैरेक्टर भी हो। समीर को प्रमोशन के साथ बहुत बेहतर सैलरी मिल गई। सालों बाद समीर खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने अपने ऑफिस में एक छोटा सा फ्रेम लगाया हुआ था। जब गलत रास्ता आसान हो, तब सही रास्ता चुनना ही असल कामयाबी है। जब कोई उसे उसकी कामयाबी का राज पूछता, वो कहता, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो था जब मैंने किसी और के पैसे को अपनी जरूरत से ज्यादा अहमियत दिया। असल अहमियत तब नहीं होता जब हमारे पास सब कुछ हो। असल अहमियत तब होता है जब गलत चीज हमारे मुश्किल आसान कर सकती हो। आज की कहानी में ये सिखाती है कि ईमानदारी का फैसला कभी फौरन पैदा नहीं होता, लेकिन उसकी बरकत बहुत दूर तक जाती है। सो है गाइस, आज हम बात करें एक छोटा सा फैसला। आज की कहानी में सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा सही फैसला पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। एक शहर में समीर नाम का एक जवान रहता था। वो एक ग्रोसरी स्टोर के कैशियर था। ग्रोसरी स्टोर में कैशियर था। उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक शाम दुकान बंद होने से कुछ देर पहले एक आदमी बहुत जल्दी में शॉपिंग करके चला गया। समीर ने कैश काउंटर साफ किया तो उसने एक एनवलप मिला। एनवलप के अंदर 50,000 रुपए थे। समीर कुछ देर तक एम्प्लॉय को देखता रहा। उसकी माँ के दवा खत्म होने वाली थी और उसके पास घर के खर्चे के लिए भी बहुत कम पैसे थे। उसके दिल में ख्याल आया, मैं ये पैसे रख लूं तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन फिर उसने एम्प्लॉय के अंदर एक छोटी सी रिसिप्ट देखी जिस पर कस्टमर का नाम और फोन नंबर लिखा था। समीर ने फौरन नंबर मिलाया। कुछ देर बाद वो आदमी वापस दुकान पर आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, ये पैसे मेरे बिजनेस की सैलरी थी। अगर ये ना मिलते तो मेरे एम्प्लॉयज को वक्त पर पेमेंट नहीं हो पाती। समीर ने एनवलप उसके हवाले कर दिया। आदमी ने खुशी से कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल दूर कर दी। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। समीर ने कहा, सर, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आदमी चला गया। समीर को लगा बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ग्रोसरी स्टोर के मालिक ने समीर को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा, एक नई सुपरमार्केट चेन में तुम्हारे लिए जॉब ऑफर आई है। समीर हैरान हुआ। पता चला कि वही आदमी उस सुपरमार्केट चेन का ओनर था। उसने कहा, मुझे एक ऐसा मैनेजर की जरूरत थी जिसके पास सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि कैरेक्टर भी हो। समीर को प्रमोशन के साथ बहुत बेहतर सैलरी मिल गई। सालों बाद समीर खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने अपने ऑफिस में एक छोटा सा फ्रेम लगाया हुआ था। जब गलत रास्ता आसान हो, तब सही रास्ता चुनना ही असल कामयाबी है। जब कोई उसे उसकी कामयाबी का राज पूछता, वो कहता, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो था जब मैंने किसी और के पैसे को अपनी जरूरत से ज्यादा अहमियत दिया। असल अहमियत तब नहीं होता जब हमारे पास सब कुछ हो। असल अहमियत तब होता है जब गलत चीज हमारे मुश्किल आसान कर सकती हो। आज की कहानी में ये सिखाती है कि ईमानदारी का फैसला कभी फौरन पैदा नहीं होता, लेकिन उसकी बरकत बहुत दूर तक जाती है। सो है गाइस, आज हम बात करें एक छोटा सा फैसला। आज की कहानी में ये सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा सही फैसला पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। एक शहर में समीर नाम का एक जवान रहता था। वो एक ग्रोसरी स्टोर के कैशियर था। ग्रोसरी स्टोर में कैशियर था। उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक शाम दुकान बंद होने से कुछ देर पहले एक आदमी बहुत जल्दी में शॉपिंग करके चला गया। समीर ने कैश काउंटर साफ किया तो उसने एक एनवलप मिला।
envelope के अंदर 50,000 रुपए थे। समीर कुछ देर तक एम्प्लॉय को देखता रहा। उसकी माँ की दवा खत्म होने वाली थी और उसके पास घर के खर्चे के लिए भी बहुत कम पैसे थे। उसके दिल में ख्याल आया, मैं ये पैसे रख लूं तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन फिर उसने एम्प्लॉय के अंदर एक छोटी सी रिसिप्ट देखी जिस पर कस्टमर का नाम और फोन नंबर लिखा था। समीर ने फौरन नंबर मिलाया। कुछ देर बाद वो आदमी वापस दुकान पर आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, ये पैसे मेरे बिजनेस की सैलरी थी। अगर ये ना मिलते तो मेरे एम्प्लॉयज को वक्त पर पेमेंट नहीं हो पाती। समीर ने एनवेलप उसके हवाले कर दिया। आदमी ने खुशी से कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल दूर कर दी। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। समीर ने कहा, सर, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आदमी चला गया। समीर को लगा बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ग्रोसरी स्टोर के मालिक ने समीर को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा, एक नई सुपरमार्केट चेन में तुम्हारे लिए जॉब ऑफर आई है। समीर हैरान हुआ। पता चला कि वही आदमी उस सुपरमार्केट चेन का ओनर था। उसने कहा, मुझे एक ऐसा मैनेजर की जरूरत थी जिसके पास सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि कैरेक्टर भी हो। समीर को प्रमोशन के साथ बहुत बेहतर सैलरी मिल गई। सालों बाद समीर खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने अपने ऑफिस में एक छोटा सा फ्रेम लगाया हुआ था। जब गलत रास्ता आसान हो तब सही रास्ता चुनना ही असल कामयाबी है। जब कोई उसे उसकी कामयाबी का राज पूछता, वो कहता, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो था जब मैंने किसी और के पैसे को अपनी जरूरत से ज्यादा अहमियत दिया। असल अहमियत तब नहीं होता जब हमारे पास सब कुछ हो। असल अहमियत तब होता है जब गलत चीज हमारे मुश्किल आसान कर सकती हो। आज की कहानी में ये सिखाती है कि ईमानदारी का फैसला कभी फौरन पैदा नहीं होता, लेकिन उसकी बरकत बहुत दूर तक जाती है। सो है गाइस, आज हम बात करें एक छोटा सा फैसला। आज की कहानी में सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा सही फैसला पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। एक शहर में समीर नाम का एक जवान रहता था। वो एक ग्रोसरी स्टोर के कैशियर था। ग्रोसरी स्टोर में कैशियर था। उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक शाम दुकान बंद होने से कुछ देर पहले एक आदमी बहुत जल्दी में शॉपिंग करके चला गया। समीर ने कैश काउंटर साफ किया तो उसने एक एनवेलप मिला। एनवेलप के अंदर 50,000 रुपए थे। समीर कुछ देर तक एम्प्लॉय को देखता रहा। उसकी माँ की दवा खत्म होने वाली थी और उसके पास घर के खर्चे के लिए भी बहुत कम पैसे थे। उसके दिल में ख्याल आया, मैं ये पैसे रख लूं तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन फिर उसने एम्प्लॉय के अंदर एक छोटी सी रिसिप्ट देखी जिस पर कस्टमर का नाम और फोन नंबर लिखा था। समीर ने फौरन नंबर मिलाया। कुछ देर बाद वो आदमी वापस दुकान पर आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, ये पैसे मेरे बिजनेस की सैलरी थी। अगर ये ना मिलते तो मेरे एम्प्लॉयज को वक्त पर पेमेंट नहीं हो पाती। समीर ने एनवेलप उसके हवाले कर दिया। आदमी ने खुशी से कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल दूर कर दी। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। समीर ने कहा, सर, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आदमी चला गया। समीर को लगा बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ग्रोसरी स्टोर के मालिक ने समीर को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा, एक नई सुपरमार्केट चेन में तुम्हारे लिए जॉब ऑफर आई है। समीर हैरान हुआ। पता चला कि वही आदमी उस सुपरमार्केट चेन का ओनर था। उसने कहा, मुझे एक ऐसा मैनेजर की जरूरत थी जिसके पास सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि कैरेक्टर भी हो। समीर को प्रमोशन के साथ बहुत बेहतर सैलरी मिल गई। सालों बाद समीर खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने अपने ऑफिस में एक छोटा सा फ्रेम लगाया हुआ था।
जब गलत रास्ता आसान हो तब सही रास्ता चुनना ही असल कामयाबी है। जब कोई उसे उसकी कामयाबी का राज पूछता, वो कहता, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो था जब मैंने किसी और के पैसे को अपनी जरूरत से ज्यादा अहमियत दिया। असल अहमियत तब नहीं होता जब हमारे पास सब कुछ हो। असल अहमियत तब होता है जब गलत चीज हमारे मुश्किल आसान कर सकती हो। आज की कहानी में ये सिखाती है कि ईमानदारी का फैसला कभी फौरन पैदा नहीं होता, लेकिन उसकी बरकत बहुत दूर तक जाती है। सो है गाइस, आज हम बात करें एक छोटा सा फैसला। आज की कहानी में ये सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा सही फैसला पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। एक शहर में समीर नाम का एक जवान रहता था। वो एक ग्रोसरी स्टोर के कैशियर था। ग्रोसरी स्टोर में कैशियर था। उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक शाम दुकान बंद होने से कुछ देर पहले एक आदमी बहुत जल्दी में शॉपिंग करके चला गया। समीर ने कैश काउंटर साफ किया तो उसने एक एनवलप मिला। एनवलप के अंदर 50,000 रुपए थे। समीर कुछ देर तक एम्प्लॉय को देखता रहा। उसकी माँ के दवा खत्म होने वाली थी और उसके पास घर के खर्चे के लिए भी बहुत कम पैसे थे। उसके दिल में ख्याल आया, मैं ये पैसे रख लूं तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन फिर उसने एम्प्लॉय के अंदर एक छोटी सी रिसिप्ट देखी जिस पर कस्टमर का नाम और फोन नंबर लिखा था। समीर ने फौरन नंबर मिलाया। कुछ देर बाद वो आदमी वापस दुकान पर आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, ये पैसे मेरे बिजनेस की सैलरी थी। अगर ये ना मिलते तो मेरे एम्प्लॉयज को वक्त पर पेमेंट नहीं हो पाती। समीर ने एनवलप उसके हवाले कर दिया। आदमी ने खुशी से कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल दूर कर दी। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। समीर ने कहा, सर, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आदमी चला गया। समीर को लगा बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ग्रोसरी स्टोर के मालिक ने समीर को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा, एक नई सुपरमार्केट चेन में तुम्हारे लिए जॉब ऑफर आई है। समीर हैरान हुआ। पता चला कि वही आदमी उस सुपरमार्केट चेन का ओनर था। उसने कहा, मुझे एक ऐसा मैनेजर की जरूरत थी जिसके पास सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि कैरेक्टर भी हो। समीर को प्रमोशन के साथ बहुत बेहतर सैलरी मिल गई। सालों बाद समीर खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने अपने ऑफिस में एक छोटा सा फ्रेम लगाया हुआ था। जब गलत रास्ता आसान हो तब सही रास्ता चुनना ही असल कामयाबी है। जब कोई उसे उसकी कामयाबी का राज पूछता, वो कहता, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो था जब मैंने किसी और के पैसे को अपनी जरूरत से ज्यादा अहमियत दिया। असल अहमियत तब नहीं होता जब हमारे पास सब कुछ हो। असल अहमियत तब होता है जब गलत चीज हमारे मुश्किल आसान कर सकती हो। आज की कहानी में ये सिखाती है कि ईमानदारी का फैसला कभी फौरन पैदा नहीं होता, लेकिन उसकी बरकत बहुत दूर तक जाती है। सो है गाइस, आज हम बात करें एक छोटा सा फैसला। आज की कहानी में ये सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा सही फैसला पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। एक शहर में समीर नाम का एक जवान रहता था। वो एक ग्रोसरी स्टोर के कैशियर था। ग्रोसरी स्टोर में कैशियर था। उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक शाम दुकान बंद होने से कुछ देर पहले एक आदमी बहुत जल्दी में शॉपिंग करके चला गया। समीर ने कैश काउंटर साफ किया तो उसने एक एनवलप मिला। एनवलप के अंदर 50,000 रुपए थे। समीर कुछ देर तक एम्प्लॉय को देखता रहा। उसकी माँ के दवा खत्म होने वाली थी और उसके पास घर के खर्चे के लिए भी बहुत कम पैसे थे। उसके दिल में ख्याल आया, मैं ये पैसे रख लूं तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन फिर उसने एम्प्लॉय के अंदर एक छोटी सी रिसिप्ट देखी जिस पर कस्टमर का नाम और फोन नंबर लिखा था। समीर ने फौरन नंबर मिलाया। कुछ देर बाद
وہ آتی واپس دکان پر آیا، اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا یہ پیسے میرے بزنس کی سیلری تھی، اگر یہ نہ ملتے تو میرے امپلائیز کو وقت پر پیمنٹ نہیں ہو پاتی۔ سمیر نے انویلوپ اس کے حوالے کر دیا۔ آدمی نے خوشی سے کہا، بیٹا تم نے میری بہت بڑی مشکل دور کر دی، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ سمیر نے کہا، سر بس میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آدمی چلا گیا۔ سمیر کو لگا بات یہیں ختم ہو گئی، لیکن کچھ ہفتوں بعد گروسری اسٹور کے مالک نے سمیر کو اپنے آفس میں بلایا۔ انہوں نے کہا، ایک نئی سپر مارکیٹ چین میں تمہارے لیے جاب آفر آئی ہے۔ سمیر حیران ہوا، پتہ چلا کہ وہی آدمی اس سپر مارکیٹ چین کا اونر تھا۔ اس نے کہا، مجھے ایک ایسا مینیجر کی ضرورت تھی جس کے پاس صرف اسکلز نہیں بلکہ کریکٹر بھی ہو۔ سمیر کو پروموشن کے ساتھ بہت بہتر سیلری مل گئی۔ سالوں بعد سمیر خود ایک سکسیسفل بزنس مین بن گیا، لیکن اس نے اپنے آفس میں ایک چھوٹا سا فریم لگایا ہوا تھا، جب غلط راستہ آسان ہو تب صحیح راستہ چننا ہی اصل کامیابی ہے۔ جب کوئی اسے اس کی کامیابی کا راز پوچھتا، وہ کہتا، میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ وہ تھا جب میں نے کسی اور کے پیسے کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہمیت دیا۔ اصل اہمیت تب نہیں ہوتا جب ہمارے پاس سب کچھ ہو، اصل اہمیت تب ہوتا ہے جب غلط چیز ہمارے مشکل آسان کر سکتی ہو۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری کا فیصلہ کبھی فوراً پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کی برکت بہت دور تک جاتی ہے۔ گائز، آج ہم بات کریں ایک چھوٹا سا فیصلہ۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی ایک چھوٹا سا صحیح فیصلہ پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ ایک شہر میں سمیر نام کا ایک جوان رہتا تھا۔ وہ ایک گروسری اسٹور میں کیشیئر تھا۔ اس کی تنخواہ کم تھی، لیکن وہ ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ ایک شام دکان بند ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک آدمی بہت جلدی میں شاپنگ کر کے چلا گیا۔ سمیر نے کیش کاؤنٹر صاف کیا تو اسے ایک انویلوپ ملا۔ انویلوپ کے اندر 50,000 روپے تھے۔ سمیر کچھ دیر تک انویلوپ کو دیکھتا رہا۔ اس کی ماں کی دوا ختم ہونے والی تھی اور اس کے پاس گھر کے خرچے کے لیے بھی بہت کم پیسے تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا، میں یہ پیسے رکھ لوں تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ لیکن پھر اس نے انویلوپ کے اندر ایک چھوٹی سی ریسیپٹ دیکھی جس پر کسٹمر کا نام اور فون نمبر لکھا تھا۔ سمیر نے فوراً نمبر ملایا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی واپس دکان پر آیا، اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ پیسے میرے بزنس کی سیلری تھی، اگر یہ نہ ملتے تو میرے امپلائیز کو وقت پر پیمنٹ نہیں ہو پاتی۔ سمیر نے انویلوپ اس کے حوالے کر دیا۔ آدمی نے خوشی سے کہا، بیٹا تم نے میری بہت بڑی مشکل دور کر دی، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ سمیر نے کہا، سر بس میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آدمی چلا گیا۔ سمیر کو لگا بات یہیں ختم ہو گئی، لیکن کچھ ہفتوں بعد گروسری اسٹور کے مالک نے سمیر کو اپنے آفس میں بلایا۔ انہوں نے کہا، ایک نئی سپر مارکیٹ چین میں تمہارے لیے جاب آفر آئی ہے۔ سمیر حیران ہوا، پتہ چلا کہ وہی آدمی اس سپر مارکیٹ چین کا اونر تھا۔ اس نے کہا، مجھے ایک ایسا مینیجر کی ضرورت تھی جس کے پاس صرف اسکلز نہیں بلکہ کریکٹر بھی ہو۔ سمیر کو پروموشن کے ساتھ بہت بہتر سیلری مل گئی۔ سالوں بعد سمیر خود ایک سکسیسفل بزنس مین بن گیا، لیکن اس نے اپنے آفس میں ایک چھوٹا سا فریم لگایا ہوا تھا، جب غلط راستہ آسان ہو تب صحیح راستہ چننا ہی اصل کامیابی ہے۔ جب کوئی اسے اس کی کامیابی کا راز پوچھتا، وہ کہتا، میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ وہ تھا جب میں نے کسی اور کے پیسے کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہمیت دیا۔ اصل اہمیت تب نہیں ہوتی
तब नहीं होता जब हमारे पास सब कुछ हो। असल अहमियत तब होता है जब गलत चीज हमारे मुश्किल आसान कर सकती हो। आज की कहानी में ये सिखाती है कि ईमानदारी का फैसला कभी फौरन पैदा नहीं होता, लेकिन उसकी बरकत बहुत दूर तक जाती है। सो है गाइस, आज हम बात करें एक छोटा सा फैसला। आज की कहानी में ये सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा सही फैसला